Good afternoon, good morning, everyone. This is the sum we will be doing today in front of your screen. Following are the purchases and sales of wheat in the months of March 2014. Following are the purchases and sales of wheat in the months of March 2014. Prepare a statement showing valuation of stock on the basis of FIFO method. Now, what they have given the date, which is from March 1st till 31st. Then they have given purchases. Then they have given rate. Then they have given sales. So here information of purchases is there, information of sales is there, quantity they have used instead of units, they have used kgs. So kg units don't get confused, same ही है. So then what is there? Out of the purchases, March 5th, 50 kgs were returned to the supplier. Means March 5th को जो we had purchased, March 5th को we had purchased 300 units. उसमें से 50 kg 50 units were returned to the supplier on March 8th. तो हमने क्या किया, 5th मार्च को जो खरीदा था उसमें से 30 kgs हमने क्या किया, हमने 8th को रिटर्न कर दिया. हमने 8th को रिटर्न कर दिया, 8th को रिटर्न कर दिया. ओके, तो अब रिटर्न करेंगे तो परचेस कम होगा एंड वी हैव ओनली 2 कॉलम्स. सो कहाँ पे दिखा है इसको, ये परचेस रिटर्न कर दिया इज नथिंग बट रिटर्न आउटवर्ड, और वी कैन से परचेस रिटर्न. तो परचेस रिटर्न को हमेशा हम ऑपोजिट कॉलम दैट इज सेल्स के कॉलम में बताएंगे. वेयर विल वी शो द परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न we will show in the sales column. Purchase return we will show in the sales column. And then आगे जब when we read out of sales on March 23rd, out of sales on March 23rd, a customer returns. March 23rd का सेल देखो कितना है, it is 400 units. On March 23rd we have done a sale of 400 kg. उसमें से a customer returned 20 kgs on March 26th. A customer returned 20 kgs on March 26th. On March 26th कस्टमर ने क्या किया, we had purchased on, we had sold on how, when, which date, we had sold on 23rd. तो 23rd में जो सेल किया था उसमें से कस्टमर को हमने सेल किया था 400 kgs. उसमें से अ कस्टमर हैज रिटर्न 20 kg बैक टू अस. तो क्या हो जाएगा, हमारा जो सेल किया था, यस एग्जैक्टली, हमने जो सेल किया था वो रिटर्न हो गया. दिस इज रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न. तो सेल्स रिटर्न को हम ऑपोजिट साइड में दिखाएंगे बिकॉज वी हैव इन द स्टॉक रजिस्टर ओनली 2 कॉलम्स टू शो, एक तो परचेज और एक सेल्स. सो सेल्स रिटर्न को हम परचेज के कॉलम में ऐड करेंगे, परचेस में दिखाएंगे बिकॉज 20 kg जो सेल हो चुका था विच हैड गॉट सोल्ड हैज नाउ अगेन कम बैक टू अस. तो उसको रिकॉर्ड करते वक्त वी विल रिकॉर्ड इन द परचेस कॉलम. दैट्स इट. इतना समझा सकीना, करेक्ट आंसर. सो वी विल रिकॉर्ड इट इन द परचेस. सो what we will do now, we will start this sum. इसको क्या बोलेंगे, स्टॉक रजिस्टर for the month of March, for the period or month of March 2014.
14, and which method? They have already told that you should do from FIFO method. Now let us prepare the columns. Purchase, sales, and finally the last one is balance. The last one is balance. Balance. So here we will write date, इसको we will write purchase, or we can also call it as receipt. Next one is sales. We can also call it as issues. And then the last one is the balance column. So यहाँ पे if you want आप unit के बदले में kgs भी लिख सकते हैं, because question में they have given kgs, but that will not change anything. Kg, rupees, sorry, kg, then what we write? One रेट अगर लिखना है तो, नहीं तो अगर आप यूनिट लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. You can write, if you want to write unit, you can write unit also, no problem. Rate, amount, kgs, rate, amount. Because these people have used kgs here, I have written kg, but if you write units also, it will be considered, don't worry. Now फर्स्ट ट्रांजैक्शन कौन से डेट को है? 2014 मार्च 1st. 2014 मार्च 1st को हमने क्या किया है? व्हाट हैव वी डन? परचेसेस में 600 यूनिट है एंड रेट इज 4. मल्टीप्लाई करो, हाउ मच आर यू गेटिंग? 600 into 4. How much have you got the amount? 600 into 4, 2400. So directly और किधर लिखेंगे? Directly we will write in the balance column 2400. Done. Now go to the next date after 4th, which is the next date. After 1st March, which is the next date, it is 4th March, and 4th March को they have given sales है, तो sales कितना unit they have given, कितना kg? 300 kg. and rate क्या लेंगे? सेल्स एक ही है, 600 में से 300 सेल कर दिया, so how much it will be? 1200. तो कितना बचा? 600 में से 300 गया, तो remaining is 1200. Now we will go to the next transaction. After 4th, which is the next date? After 4th, which is the next date? After 4th, the next date is? After 4th, the next date is? The next date is 5th. After 4th, the next date is 5th. After 4th, the next date is 5th. तो 5th को how many units? 5th को how many units we have purchased? We have purchased 300 units, and what is the rate? 3.80. So multiply 300 with 3.80. 3.80, how much are you getting? 1140. So directly जब भी we are purchasing, what we will do?
पहले जो ऑलरेडी अंडर फीफो मेथड जो हमारे पास पहले से स्टॉक है वो हम पहले लिखेंगे, एंड देन टुडे व्हाट वी हैव परचेज्ड 300 यूनिट्स फॉर 3.80, it will come to 1140. So this is also done. Fifth transaction we have recorded. Now after fifth, which is the next transaction, which is the next transaction after fifth, which is the next transaction, it is 10th. So 10th को it is sale. How many units are we selling? 200. क्या हम डायरेक्टली दे सकते 200 फ्रॉम द 300? एज पर फीफो मेथड हमने जो पहले परचेज किया विल बी सोल्ड फर्स्ट. तो 300 जो पहले है, द फर्स्ट वन, this one, there are two 300s, the first and the last. But as per FIFO method, हमें जो first वाला 300 है वो लेना है. उसमें से कितना? अच्छा 1 minute, we can't forget. Wait. Thank you so much for reminding. जो हमने 5th में खरीदा था, 5th, we on 5th March, before going to 10th, very good, Sheikh, very good. Before going to the 10th March, what we will have to do, we will have to return the purchases which was done on 5th March. कितना kg रिटर्न करना है? 50 kg रिटर्न करना है. कौन सा kg रिटर्न करना है? 50 kg रिटर्न करना है. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे what is the date, we will write the date 8th, बिकॉज 10th से पहले 8th आता है, एंड 8th मार्च को हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ मेनी kg हम. एंड 1 minute, परचेस मतलब हमने जब परचेस किया तो यहाँ लिखा था 300 में. 5th में जब हमने परचेस किया तो हमने यहाँ लिखा था 300. नाउ व्हाट वी विल डू व्हेन वी आर डूइंग द रिटर्न, हम ऑपोजिट साइड में लिखेंगे परचेस comes in the purchase, but purchase return has to be shown in the sale. Purchase return has to be shown in the sales column, showing an opposite effect कि हमने जो खरीदा था, now it is going outside the business. But now what rate you will take? 5th March को क्या रेट था? 5th March को जब हमने खरीदा था, what was the rate? 3.80. तो मल्टीप्लाई करो 50 into 3.80. हाउ मच आर यू गेटिंग? मल्टीप्लाई करो, हाउ मच आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग 190 everyone? सो यहाँ लिखेंगे 190. तो इसके बाद बैलेंस में क्या आएगा? दिस 300 वी हैव नॉट टच्ड, जैसे का वैसा ही है. फिर हमने कौन सा रिटर्न किया? 300 में से 50 रिटर्न कर दिया. तो हाउ मच इज लेफ्ट विथ अस? 250 इज लेफ्ट विथ अस. 250 इज लेफ्ट विथ अस. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. हाउ मच आर यू गेटिंग? 250 इंटू 3.8, आर यू गेटिंग 950 everyone? 950. 250 into 3.8, which is equal to 950. Any confusion in this step? Any confusion? हमने परचेस रिटर्न को जैसे किया, परचेस रिटर्न, they have given in the question that we had purchased, एंड परचेस रिटर्न में हमेशा रीसेंट वाले से ही लेना पड़ेगा, बिकॉज आप कभी भी, आप जब भी खरीद के रिटर्न नहीं कर सकते हो. सी हियर, परचेस रिटर्न मतलब क्या होगा? आपने अभी खरीदा होगा, तो नॉर्मली द शॉपकीपर विल कीप दिस ऑप्शन ऑफ रिटर्न available for a limited span of time. Got it? The company, when you are purchasing something, suppose आपने कुछ परचेस किया एक शॉप से, तो आप अगर परचेस करते हो तो रिटर्न करने का जो फैसिलिटी है आपको बहुत टाइम तक नहीं रहेगा. मे बी 1 day, 2 day, मैक्सिमम 1 week, उसके बाद नहीं. तो नॉर्मली व्हेनेवर देयर इज अ परचेस रिटर्न,
हमें सबसे लास्ट वाले को ही कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज आप उससे पहले जो खरीदा है वो तो रिटर्न नहीं कर पाओगे, बिकॉज द चीजें रिटर्न करने का भी एक टाइम लिमिट होता है. You cannot return the things as and when you feel you want to return. There will be some time limit. वो time limit में आपको चीजों को return करना पड़ेगा. उसके बाद अगर वो टाइम लिमिट हो गया, then you will not be able to return. So here वैसे तो they have given the date कि परचेस ऑन 5th मार्च को हमने 300 यूनिट्स परचेस किया था, उसमें से 50 यूनिट्स हैज बीन रिटर्न्ड. रिटर्न किया तो परचेस में तो नहीं लिख सकते. रिटर्न का मीनिंग क्या है? द गुड्स आर गोइंग आउट एंड गुड्स आर गोइंग आउट एंड वी हैव ओनली 2 कॉलम्स, मतलब परचेस का ऑपोजिट इज परचेस रिटर्न. तो परचेस रिटर्न को हम हमेशा कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? इन द सेल्स कॉलम. समझा? बिकॉज परचेस रिटर्न मीन्स गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. गुड्स आर गोइंग आउट, इसलिए हमने परचेस रिटर्न को सेल्स के कॉलम में रिकॉर्ड किया. एनी कंफ्यूजन? नाउ आफ्टर द 8th one, what is the next date? 8th March के बाद what is the next date? What is the next date after 8th? It is 10th. So we will go to 10th, and 10th को क्या है? Sales है. So we will go to 10th, and 10th को it is sales of 200 units. So 200 दे सकते from the 300. हमारे पास 300 and 250 है, बट एज पर फीफो मेथड हमें सबसे जो पहले वाला है वो उसमें से 200 देना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाई 200 into 4, हाउ मच आर यू गेटिंग? 800. एंड कितना बचा? 100 बचा. 300 में से 200 गया तो 100 बचा. दिस बिकम्स 400. एंड दिस 250 जो हमने अभी तक हाथ नहीं लगाया है, that will come as it is. That will be 950 as it is. This is done. Now we go to the next transaction. After 10th, it is 18th of March. It is purchase. So 18th March को हम क्या करेंगे? We will go to 18th March. परचेस है. हाउ मेनी यूनिट्स परचेस? 200 फॉर 4.20. सो यहाँ वी विल राइट 200. Here we will write 4.20. Multiply and tell me how much are you getting? 840. So जब भी परचेस करते हैं we will have to write in the balance. Purchase means we'll have to write in the balance. Same sequence we have to use. जो जैसे सीक्वेंस में खरीदा है वैसे सीक्वेंस में ही बैलेंस में दिखाना है, बिकॉज इट इज फीफो मेथड. 4.20 and here we will write 840. This is done. 18th March transaction done. 18th March transaction done. Now the transaction is on 23rd March. It is a sales of 400 unit. 23rd March sales of 400 unit. So हम जाएंगे 23rd March को and sale करना है 400 unit. We have to sell 400 units. तो sale करेंगे 400 units. So what will be the directly 400 दे सकते हैं? Can we give 400 at once? See what is the कितना पहले देना पड़ेगा? पहले 100 देना पड़ेगा पूरा 4 रुपीज के हिसाब से. इट बिकम्स 400. अभी भी 300 देना बाकी है तो पूरा 250 देना पड़ेगा 3.80 के हिसाब से. सो दैट बिकम्स 950. अभी भी कितना देना बाकी है?
350 हुआ है एंड वी नीड टू गिव 400. सो 50 दिया फ्रॉम 4.20. सो मल्टीप्लाई करो 50 इंटू 4.20. हाउ मच इज इट कमिंग? मल्टीप्लाई करो 50 इंटू 4.20. हाउ मच आर यू गेटिंग? 50 into 4.20, 210. Everyone are getting this? 210. So how much is left? 200 में 50 चला गया. So 150 is left as per 4.20. So how much is this coming? Multiply करो. How much is this coming? 630. This is coming 630. So this is also done. Now what we will do? Now we will go to the date wise. देखते हैं डेट में. तो यहाँ पे 29th है, पर 29 से पहले the next transaction is on 29th, but 29 से पहले there is one additional information given, that is out of sales on March 23rd. Out of sales on March 23rd, a customer returned 20 kgs on March 26th. तो मार्च 26 को कस्टमर ने क्या किया? 20 kg रिटर्न किया. अब सेल्स मतलब वो यहाँ पे है. सेल्स मतलब इट इज हियर. अब सेल्स रिटर्न मीन्स सेल्स मतलब व्हाट? गुड्स आर गोइंग आउट. सेल्स रिटर्न मीन्स व्हाट? गुड्स आर कमिंग इनसाइड द बिजनेस. गुड्स आर कमिंग इनसाइड द बिजनेस. तो 26 को हमें किधर दिखाना पड़ेगा? 20 kg जो रिटर्न हुआ है, टू शो द ऑपोजिट इफेक्ट वी हैव टू शो इट इन द परचेस. नाउ क्या रेट ले? कैन एनीवन आंसर मी कि हम यहाँ पे कौन सा रेट लेंगे? कैन एनीवन टेल मी विच रेट वी विल टेक? बट उस दिन का रेट कितना था? जिस दिन हमने सेल किया उस दिन क्या रेट था? उस दिन तो यहाँ पे 3 रेट्स है. दिस इज 23rd का रेट विच वी 23rd का सेल. सेल होते वक्त तो 3 रेट्स है, 4 kg, 3.8 kg, 4.2. I mean rate was 4 per kg, 3.8 per kg, पर 4.20. 3 रेट्स है. तो कौन सा रेट यूज करे? Why are you saying 4.20 यूज करना चाहिए? बिकॉज जब से यू आर करेक्ट, यू ऑल आर करेक्ट, लास्ट वाला रेट ही यूज करेंगे. क्यों यूज करेंगे? बिकॉज जब सेल रिटर्न होगा तो हम रिटर्न करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं देंगे. मतलब अगर कोई कस्टमर ने अभी रिसेंटली से खरीदा रहेगा हमसे, तो हम उसका ही रिटर्न करेंगे ना. जो बहुत पहले खरीदा रहेगा उसका तो नहीं. तो हमेशा रेट लेते वक्त, क्योंकि हम मानेंगे जो ये 20 kg है, दिस इज फ्रॉम द लास्ट लॉट विच वी आर सोल्ड ऑफ 50 kg. तो यहाँ पे हम रेट लिखेंगे 4.20. यहाँ पे हम रेट लिखेंगे 4.20, द लास्ट वन. जैसे हमने परचेस में किया, जैसे हमने परचेस रिटर्न में किया, सेम रूल वी हैव अप्लाइड हियर ऑल्सो. सो नाउ मल्टीप्लाई करो 20 इंटू 4.20. हाउ मच आर यू गेटिंग? 20 इंटू 4.20. हाउ मच आर यू गेटिंग? 84. सॉरी, वी आर गेटिंग 84. सो अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो दिस विल बी, इसको ऐड करके लिखो बिकॉज रेट सेम है. 20 प्लस, या अलग लिखना है? आई विल ऐड एंड राइट बिकॉज द रेट इज द सेम ना. दोनों को मल्टीप्लाई तो सेम अमाउंट से करना है. तो इट विल बिकम हाउ मच? इट विल बिकम 714. This will become 714. This is done. 26 done. Any confusion here? Any confusion?
हमें सेल रिटर्न करना था, तो सेल के ऑपोजिट साइड में लिखा एंड रेट कौन सा लिया, जो सबसे लास्ट में सेल किया होगा वही रिटर्न हुआ रहेगा, तो वही रिटर्न ले लिया हमने, वही रिटर्न का रेट ले लिया, रिटर्न के लिए वही रेट ले लिया, सेल्स वाला, लास्ट सेल्स वाला. Now we will go to the next. After 26th, the next date is 29th. 4.40 is the rate. 29th, 4.440 is the rate. So we will go to 29th. 29th and rate 400. 400 is the kg. 4.40 is the rate. So multiply karo. What are you getting? 1760. Correct. So we will go to the balance. जो पहले का है वो वैसे ही पहले लिखेंगे, एंड जो बाद में परचेज किया दैट वी विल शो 400. 4.4 के हिसाब से इट इज कमिंग टू 1760. Now we will go to the next what is given. Next is 300 units ka sale. So we will go to 31st March. The next date is 31st and 31st ko it is a sale. तो सेल है, डायरेक्टली कैन वी सेल 300 ईयर? एक साथ में 300 सेल हो सकता है? नहीं हो सकता. तो पहले 170 वी विल गिव एज पर 714. टोटल हो जाएगा 714. नाउ 300 में से 170 दे दिया, तो हाउ मच मोर वी रिक्वायर? 130. वी रिक्वायर 130 मोर, जो हम 4.4 से देंगे, 4.40 से देंगे. तो मल्टीप्लाई करो 572. एवरीवन आर गेटिंग. तो कितना बचा? कितना बचा? 400 में से 130 has gone, तो we have 270 which is out of 4.40. मल्टीप्लाई किया तो हाउ मच आर वी गेटिंग? 1188. विद दिस द सम इज डन. एंड लास्ट में हमसे सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक पूछा है. क्लोजिंग स्टॉक हम लिख लेंगे. क्लोजिंग स्टॉक इज 270 kg at rupees 1188. So with this the sum is done. Any with this the sum is done.